dating apps, are they making you feel stuck somewhere? कि लोनलीनेस फील कर रहे हैं, इसीलिए हम जो इंट्रोवर्ट्स काइंड ऑफ थिंग बोलते हैं, उन्होंने एक्चुअली इस मार्केट को बूम किया डेटिंग एप्स के. People hop on dating apps just because of the loneliness, or they're actually craving for sex or something like that. ट्रस्ट भी ऐसे तोड़े जा रहे हैं जैसे बोलते हैं ना, लोग बैंक में जाके एफडी तोड़ रहे हैं, वैसे तोड़े जा रहे हैं बस. बाप रे, तुम्हारा किसने तोड़ के चला गया क्या? वो इतना नहीं पर दादा भाई. Hello Anirudh, how are you? Absolutely good. So basically, how you are feeling here to be here? Grateful to be here. Like even past episode has been shooted great, and I have seen that. Yeah. So welcome again to the podcast of Sigma Guys, where we break the stigma with Sigma. And today our topic is really raw, and I feel it's like the topic which is not really spoken about. Okay. Dating apps and how they're affecting the sex life. Okay. So let's dive in. Sure. Do you think कि dating apps are they making you feel stuck somewhere, or you are getting like idea कि clarity मिल रहा है कि are you want to be in like a casual sex वाला thing, or maybe a relationship or a situationship? Like, are these things dating apps making it clear, or नॉट क्लियर, नथिंग. इट्स लाइक डिपेंड ऑन पर्सन, क्योंकि हर कोई अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है. क्योंकि हर एक बंदा या बंदी कोई भी स्टार्ट कर रहा है डेटिंग ऐप्स पे, तो इट्स लाइक यूजुअली उनका पार्ट ही है कि मैं अभी यूजुअली वो लोग ही देख पा रहे हैं कि लोनलीनेस फील कर रहे हैं, इसीलिए हम जो इंट्रोवर्ट्स काइंड ऑफ थिंग बोलते हैं, उन्होंने एक्चुअली इस मार्केट को बूम किया डेटिंग ऐप्स के. कि लोनलीनेस की वजह से. talking about and speaking about loneliness, I would say कि loneliness क्या है exactly? Like, do people hop on dating apps just because of the loneliness, or they're actually craving for sex or something like that? Both the situation में भी depends. It's actually depends on the person कि actually क्या लोनलीनेस में आपको, हाँ, कि मुझे किसी से एक्चुअली में बात करना है बस नॉर्मली, कि मैं एटलीस्ट कुछ तो बात करूँ रेगुलरली, हाय गुड मॉर्निंग, ये सब टेक्स्ट के लिए, ड्राई टेक्सटिंग ये सब. और किसी के लिए फिजिकल नीड्स भी होते हैं भाई, कि मैं बस पिच इन करूँ कहाँ से एंड जस्ट आई विल गेट इट डन, तो वो भी है. Okay, and what do you think? Talking about the physical needs, here comes the sex part. Okay. So, are people feeling like the void जैसे कि पहले वो फील करते थे, और are they satisfied and they are like, okay, this is the person I can be with? Through dating apps. Yeah, I mean, there are a lot people who might just think कि उनके लिए dating apps सिर्फ sex है या फिर casual thing है, but there are a lot people who have the another side कि वो actually try कर रहे हो, figure out कर रहे हो कि are they fit for a relationship, or maybe they are exploring. But उनके like in studies also have shown कि most around 70 to 75% are choosing the casual path. Neither the physical needs ऐसा कुछ नहीं, the casual part. So you mean to say कि dating apps equals to casual sex? Casual thing, not sex. I'm not mentioning the sex. Okay. The casual thing. Okay. Physical needs is different. वो मिलने के बाद वो उनका decide होता है. What is like casual? Like just a meeting a person, random people, where you like attracted to the Finding a person. friendship or something like that. फ्रेंडशिप के ऊपर बोलते ना, वो एक कहावत बोलते ना कि बियॉन्ड फ्रेंडशिप एंड बिलो द रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग. Okay. तो वैसे कुछ. Okay, it's kind of situationship, right? Kind like of. nowadays. हाँ, वो एक नया शब्द है. It's termed as. What do you think about the actually if we got into the situationship thingy? Okay. So let's break the terms. Like there are a lot terms which are in trend. Like breadcrumbing, benching. So what do you think about it? ये बेंचिंग मैंने ठीक है, एटलीस्ट ये अभी रिसेंटली ये सब कंटेंट रील के स्वाइप में दिखने लगे, स्टैंड अप कॉमेडीज में भी यूज होने लगे. ये ब्रेड क्रम्बिंग मुझे नहीं समझा एक्चुअली. आई वाज लाइक ये क्या चीज है और ये क्यों, मतलब इतना कौन सा मजा आ रहा है लोगों को. लाइक कुड यू एक्सप्लेन, लाइक तुम्हें कुछ पता होगा, तुमने तो किया होगी. So yeah, I no. Okay, I feel there is really, it's like it was trendy back then, a term called catfish.
Okay. Have you heard of that? सुना था but not clear. Catfish is like you look different in a person whereas you look different in a picture, and that's a huge difference. Okay. Filter लगाना मतलब. Snapchat. Snapchat. So yeah, what do you think about situationship? ये मुझे ये Yeah, like मुझे मत पूछो. मतलब ये ब्राइड कमिंग बोलो घोस्टिंग क्यों करना है मेरे को ये समझ नहीं आता पहली बात. सिचुएशनशिप तो एक्चुअली इट हैपेंस, मतलब इट्स लाइक कि उसको नाम अभी दिया है बट पहले भी होता था. हाँ ऐसा है कि होता रहता है ये सब तो. बट इट्स नाउ इट इज वो अभी वो किया जाता है तो वो गलत प्रेजेंट हो रहा है ना कि आप जानबूझ के वो सिचुएशनशिप में आ रहे हो. पीपल एक्सेप्टेड कि मैं वी आर इन अ सिचुएशनशिप राइट नाउ. Okay. Like we are dating. Now we are in a situationship. Then we are in a relation. ये बीच में का रास्ता क्यों डाला है? डेटिंग तक हाँ ये ऐड ऑन हुआ है कि आप मिल रहे हो किसी नए पर्सन को, ठीक है तब तक इधर तक ठीक था. Okay. वो लाइक तुम्हारा क्या लाइक पर्सपेक्टिव सिचुएशन के ऊपर? So basically, as I've told you, there was one guy. So like काफी टाइम तक we were actually like good friends. And I took really long time to understand उसके हाँ. And then ऐसे नहीं कि मतलब मैंने कोशिश की या फिर ऐसे फोकस्ड होके हाँ मेरे को ये पर्सन के लिए एनर्जी मेरी देनी है बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट इन टू रिलेशनशिप विद हिम. इट वॉज नॉट लाइक दैट. इट वॉज लाइक इट्स जस्ट हैपनिंग. वी वर वाइबिंग टुगेदर, वी वर लाइकिंग ईच अदर्स थिंग्स जो भी है. तो वो सब मतलब अपने आप हुआ. उसके बाद में देयर वॉज लाइक अ 1 month जिसमें आई फेल्ट लाइक कि इट वॉज अ काइंड ऑफ सिचुएशनशिप काइंड ऑफ थिंग वेयर आई गेव माई लाइक 200 मे बी 100%, बट उसके साइड से उतना नहीं हुआ. तो बुरा लगा बट इट वॉज लाइक कि या देयर इज लाइकिंग सो आई कांट स्टॉप दैट. मतलब मैं ऐसे उसको वैनिश नहीं कर सकती. सो आई फेल्ट लाइक कि हाँ मेरे साथ भी एक बार हुआ है. आई डोंट वांट टू नेम इट वैसे एज अ सिचुएशनशिप, बट या इट वाज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर आई वाज लाइक गिविंग माई 100% बट दैट सामने वाला पर्सन वाज नॉट वैसे. ऑप्शन थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर नहीं था उसमें फिर वैसा. घोस्टिंग का आई कैन टेल यू अ स्टोरी लाइक माय पर्सनल ही वाज माय फ्रेंड. So he was dating apps पे मिले उन्हों. She was from Bangalore and he was from Mumbai. They chat around from 1 month or 2 months around say. And they had a conversation. Yeah, they had a good conversation and then she planned to meet. Not in person, but after then after 2 months she planned to come Mumbai for a visit. She had some plans over Mumbai for a day. And she said like we'll meet on that day. Okay. So he was like, fine, works. It's a date. Yeah, it's a date. Then they met on the date. They had enjoyed the moment, whatsoever. And then after while leaving, he dropped to the airport, and he's like, "How you?" The guy dropped the girl to the airport, and he asked like, "Sab theek?" Like overall, you find it well or not? It's like. He was asking prominently कि सच बता दो it's better कि क्या ओपिनियन है सब. She's like okay fine and रात को गुड नाइट तक मैसेज अच्छा आया. Okay. सब ठीक है. सुबह का गुड मॉर्निंग इसने खुद से डाला बंदे ने. नो रिप्लाई. ठीक है इसको लगा बिजी हो गई या कुछ सोई होगी. शाम को वापस टेक्स्ट किया कि बिजी और नॉट वेयर आर यू. नो. A person disappears just like this. Yeah, so people are like that. मतलब वो बात करना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट वो रिलेशनशिप एक टैग नहीं देना चाहते. तो पीपल आर आई डोंट नो मतलब दे आर स्केर्ड अबाउट इट और मे बी दे हैड सम बैड थिंग्स विद देयर लाइफ और मे बी एक्सपीरियंसेस, बट लाइक थिंग्स हैपन. एंड if we are talking about relationship, I really want to ask you what's your thought on relationship. वही मैंने अभी बोला ना कि बेसिक like if you are on dating app, so would you go for just casual thing or maybe just sex, or would you like to go with the flow? I personally choose go with the flow thing क्योंकि पहले मैं उनसे
whosoever I'm meeting it, वो पहली डेट पे आई कैन चूज कि हाँ इट्स कनेक्टिंग और नॉट. हाँ, सो fair फर्स्ट enough. दिन लाइक एक मैं न्यू पर्सन से हिज माइंड आई एम But एबल टू रीड. you will meet that person just out of the physical appearance because dating apps just have that. Exactly, because not just So being do you want to match those जो नीचे similarities और differences आते हैं वो भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि just physical appearance? अपीयरेंस से मैं मतलब वो पॉइंटर से हम थोड़ा बहुत लाइक बोलते ना बेसिकली देखो कितना भी वो पॉइंटर्स डाल दो. हाँ, not gonna lie, but physical appearance does matters Of at the course, first sight. If of you're course. watching someone, seeing someone, then you are not liking him or her, then डेफिनेटली meeting has no नो point. पॉइंट ऑफ कोर्स. So yeah. तो वही ये देखो किस डेटिंग ऐप्स में वो नीचे कितने में वो पॉइंटर्स हो आपको थोड़े बहुत हाँ कि ये अच्छा लिखता होगा बट चैट जीपीटी भी हो सकता है. कैसे देखिए कि क्या साइंस होगा आपके साइड से कि लड़की साइन देगी आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल ताकि वो घोस्टिंग से एटलीस्ट बचे तो सही. साइन आई फील ऐसे कुछ ऑब्वियस सा होता नहीं है बिकॉज इफ इट्स अ फर्स्ट डेट मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ यू डोंट नो मी सो यू एक्चुअली डोंट नो माई पर्सनैलिटी. तो मैं कब कैसी हूँ शायद हो सकता है मैं प्रिटेंशियस हूँ मैं प्रिटेंड कर रही हूँ और हो सकता है बोलते बोलते 2-3 चीज़ें उसने कुछ ऐसी बोल दी हो कि यार नहीं करते हैं बात दूसरा कुछ करते हैं देन स्टिल ही इज coming back to the whole point. So I feel that's a sign. Again, matlab, you are boring the conversation. So that's a sign. Another sign I feel maybe there's a possibility she don't like him in a person. Just on chat she liked it. और end में जो तुमने बोला था कि that she had did texted back for the good night thingy. तो उसमें I feel कि just to make it like the end of the conversation she did that. Add a full So stop. that's also a sign. Maybe so like but it's like तो भी ऐसा भी नहीं था जैसे तुमने बोला कि like maybe वो मुझे जानता नहीं है डेट किया क्योंकि इन पर्सन क्योंकि बट फिर भी लाइक आप 1-2 महीने बात कर रहे हो यू आर कि आपने वो चैट पे बहुत सारी आपने पर्सनल बातें बोल चुके हो फिर भी ऐसा करना इज इट वैलिड इज इट I don't feel very clear. When we talk about a relationship or feelings, I feel it's actually different for everyone. Exactly. मुझे ऐसा लगता है कि I am a person who is actually not a person जिसको बहुत जल्दी feelings या emotions आ जाए. Okay. But हो सकता है कोई लड़के का अगर बहुत ज़्यादा that loving nature or maybe liking हो towards a girl. तो इट कम्स नेचुरली कि अगर तुम 2 महीने फॉर मी 2 महीने इज नॉट रियली लाइक अ लॉट टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर मे बी वैसे बट उसके लिए हो सकता है कि उसको काफी उस लड़की की पर्सनैलिटी भाग गई हो एंड आउट ऑफ दैट ही इज इनटू हर और वो 2 महीने भी उसको अफेक्ट कर जाए. So that's the thing, that's different. Like for you it might take like 6 months or maybe more than that. For me it might take 3 or 4 months. So it's different. Even for me also I actually use like dating app Bumble and Bumble mein I met a guy. We actually had a long conversation on chat for 2 months. After that we met. एंड उसके बाद में मैं उससे मिली तो मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि दैट आई डोंट नो हिम मतलब मैं जानती हूँ मुझे ऐसा लगा मैं पहले से इसको जानती हूँ वैसे एंड वी वाइब्ड अ लॉट लाइक एनीथिंग मतलब वॉट एवर आई थॉट इन अ गाय दैट ईच एंड एवरीथिंग ही वाज टिकिंग ऑल द बॉक्सेस. तो क्या हो जाता है कि इवन मैं कुछ टाइम ज़्यादा ले भी रही हूँ कोई चीज़ के लिए तो मैं उस मोमेंट में नहीं लूंगी. अच्छा. बिकॉज मेरे तो बॉक्सेस टिक हो गए ना तो अब मुझे फीलिंग्स आ गई तो दैट्स व्हाट मतलब आई फील दैट इज द चेंज मतलब वो हर पर्सन के साथ में डिफर कर जाता है. Exactly. हो सकता है कि उस लड़की को ऐसा हो गया एंड लड़की को नहीं और आफ्टर 6 months लाइक वी आर स्टिल फ्रेंड्स. But he went. We were about to get into a relationship. Okay. But after that, he went, matlab, back to his hometown, and long distance is not my thing. So. Okay. So yeah, so things. Yeah, long distance also is like a tough one. It's like a tough choice to make if you are into a serious one. Like. Yeah, exactly. Because, matlab, it's like doubting is a human tendency. You can't change it. You can't.
So even if you try to think something else, वही आएगा माइंड में कि नहीं अभी क्या करता होगा ये अभी इसका लाइक इवन लाइक बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम आल्सो कि अगर एक स्टोरी भी डालेंगे अभी घूम रहे हैं तो क्या पता क्वेश्चन मार्क हर वक्त वो एक क्लॉकवाइज क्वेश्चन मार्क आते रहता है एग्जैक्टली सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब क्या हो जाता है कि even if you talk about long distance, I feel somewhere why it's not my thing. First of all, you are in a different, you know, cities to like Zone what is zone exactly. शायद हो सकता है abroad भी हो, तो it's like two things. मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है, you are not getting exactly, and that's why I think I just can't. If you I know कि trust होना चाहिए. Exactly. If you love the person, if you like the person, there should be like a trust and respect. But still, there is like a human nature behind it that you will somehow think कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, तो better not get into it. ट्रस्ट तो भाई आजकल के ट्रस्ट में ऐसे ट्रस्ट भी ऐसे तोड़े जा रहे हैं जैसे बोलते हैं ना लोग बैंक में जाके एफडी तोड़ रहे वैसे तोड़े जा रहे हैं बस बाप रे तुम्हारा किसमें तोड़ के चलेगा वो इतना नहीं बस नहीं ज्यादा भाई okay so back to the point even what do you think I wanted to ask you what's your opinion on unprotected sex do you prefer you know protected sex or unprotected one डेफिनेटली ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट बिकॉज उसके साथ आप एक क्लियर माइंडसेट तो एटलीस्ट वो मोमेंट आप एंजॉय तो कर सको वो प्रोटेक्ट के साथ नहीं तो अनप्रोटेक्टेड में आपको हाँ एक डेफिनेटली वो एक आपको लाइक प्लेजर मोर प्लेजर तो है बट उसके साइड ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं लाइक इफ यू आर नॉट इनटू लाइक नॉट अ मैरिड कपल और समथिंग क्योंकि प्रेगनेंसी अवॉइड क्यों भाई ना क्योंकि वो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पिल if you think that कि unprotected में बहुत चीजें हैं but there are after that भी मतलब like there's a pill उसके बाद में जो लिया जाता है so what do you think why to harm your body that क्यों okay so not just for the sake of enjoyment so if you actually like the person then why to harm the person yeah fair enough but जितना मैंने रिसर्च किया है अकॉर्डिंग टू दैट आई फील देयर आर अ लॉट वुमेन who actually prefer raw sex मतलब rather than yeah it depends like वही pleasure पे बात आती है ना but if the woman wanted कि वो रहे मतलब it should be like raw sex and you are trying to you know protect it and out of that it's not happening so what's your like on that moment if the opposite partner is like have wanted to and like she's demanding it for that usually guys do it why wouldn't a guy want that like वो फन हमें भी क्यों नहीं चाहिए हमें कौन बोल रहा है but even उसके ड्रॉबैक्स दिमाग में है उस वजह से हम ना बोल रहे ना कोई ना के लिए नहीं बोल रहे okay that's the point yeah हाँ एक्चुअली ना से तो मुझे काफ़ी कुछ वो हो रहा है हिट हो रहा है सो बेसिकली व्हाट डू यू थिंक दैट कि इमोशनली तुम जिस पर्सन से कनेक्ट करते हो उस पर्सन के साथ में टू हैव सेक्स और टू गेट इंटीमेट और टू गेट फिजिकल इज इट मोर टफ या और लाइक वाइस वर्सा फर्स्टली बिकॉज आप जब भी इमोशनली किसी से अटैच होते हो you think of that person you do not see your pleasure firstly like you try both are not just guy or like दोनों भी एक दूसरे के पार्टनर को like वो प्लेजर देना चाहते हैं बट ना कि अभी ऐसा क्या होता है कि यूजुअल आप कैजुअल में क्या करते हो यू जस्ट गो फॉर योर फन फॉर यू तो वो अपना अपना मजा लेके इट्स लाइक हाँ कि सेपरेट हाँ खत्म मेरा पार्ट था कि मुझे फन चाहिए तो आई गॉट इट बट व्हेन यू लव यू वांटेड टू दैट मोमेंट कि मुझे वो एंजॉय एक गुड लवेबल मोमेंट चाहिए वो कैजुअल में लवेबल मोमेंट नहीं होता लाइक मेकिंग एन एफर्ट इज अ गुड पार्ट बट आई फील कि उस एफर्ट के चक्कर में डू यू थिंक कि तुम नर्वस हो रहे हो या फिर तुम्हारा एंजॉयमेंट मिस हो रहा है होता है कभी कभी इट्स लाइक डिपेंड ऑन इट कि आप कितने लाइक उसके बारे में लोग इतना ओवरऑल सोचते हैं मतलब हाँ थोड़ा बहुत सोचो भाई कि हाँ एग्जैक्टली बट इतना भी नहीं कि आप कि हर चीज को आप कैलकुलेटिव
लोग कैलकुलेटिवली पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट वो नहीं जाना चाहिए एक्चुअली कि जिस हाँ एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ ये बोलते हैं ना, रिवर्स नहीं बोलूँगा, बट जैसे आप कैजुअल पे देखते हो और ये देखा जा रहा है कि लोग जस्ट थिंकिंग ऑफ ईच अदर खुद के लिए, वैसा ही इतना अगर वो मतलब you mean to say कि even if it's not casual for you, just for the sex purpose, look it as a casual, Casual so thing. that you'll enjoy the moment. both the partners will enjoy their pleasures. पर ऐसे नहीं होता। वही ना, अभी वो बोल के तो नहीं होता ना, वही है कि it's नहीं like यार a वो different मोमेंट thing, में मुझे practically पता when you है। do it, हाँ। Guy is actually, you know, into the girl, or maybe he likes the girl, so that out of that वो nervousness आ रहा है, जैसे कि sex में आता है, ऐसे मिलने में भी आता है। डिपेंड्स नॉट रियली श्योर, बट अभी लाइक आई वाज लाइक अट्रैक्टेड, तो तभी जो जाते तभी तो डेट पे गए थे, अट्रैक्टेड तो हुआ था। तो बट हाँ इन जनरल नर्वसनेस तो मुझे तो होता है, बट डिपेंड्स ऑन कि वही ना पर्सनालिटी की आप कितने वो बोलते हैं ना कि आप अगर स्टैंड आउट करो, मतलब वो बोल्ड हो बात करने में एकदम, नॉट दैट द नेगेटिव पार्ट वाला बोल्ड, बट सिनेरियोस पे। Being bold is okay, Hmm. but then again anxiety होता है थोड़ा बहुत। क्या लगता है कि ऐसे कि लोग क्या सोचते होंगे कि लाइक लोग क्या उसमें कि एक आइदर भी एक कपल भी है, तो इस मोमेंट में कि क्या आइदर तुमने जैसे बोला कि नर्वसनेस वो होता है कि एक नेकेड होने या कुछ भी, स्टिल बट यू आर कि आपने पहले डेट भी किया है, आप रिलेशनशिप में हो 6 महीने से, वो ड्यूरेशन में आप हाँ टाइम ऑब्वियसली बात है, ये सब चीज़ों के लिए टाइम बेटर है कि आप वो अंडरस्टैंड करो आपकी बॉडी नीड्स या एग्जैक्टली क्या चाहिए, दोनों बात करके इट्स बेटर टू हैव अ गुड सेक्स नाइदर देन जस्ट हैव सेक्स। तो लाइक एंड ऑफ द ये है क्या कि मतलब ये होता गया लड़कों में, ये मैंने भी नोटिस किया है, बट लड़कियों में एग्जैक्टली होता गया मतलब तो भी आई फील कि मतलब होता है कि if there is love, there is liking, somewhere there should be, you know, there should be a feeling of having sex together. तो वो होती है, but at the same time we should respect each other. We should respect each other boundaries. If someone is not ready, you should try to make comfortable, like give him or her more time. Maybe शायद कुछ सोच रहे होंगे या शायद हेड में अभी तक प्रिपेयर नहीं होंगे। So it's like it is a process, you have to go through it, and I feel कि अगर तुम किसी पर्सन को उतना मतलब हैंडल विद केयर करोगे तो शायद वो दिक्कत नहीं आएगी। One of my friend एक हुआ था कि यार they came into a relationship, but उनका रिलेशनशिप से पहले they were क्लासमेट्स थे, एकदम पक्के दोस्त बोलते हैं ना, वैसे एकदम उनकी फ्रेंडशिप से ही उनकी रिलेशनशिप बिल्ड हुई कि उन दोनों को भी 3 साल उन्होंने वो फ्रेंडशिप में गुजारा, डेट वगैरह नहीं है स्पेसिफिक, बेस्ट फ्रेंड, हाँ बेस्ट फ्रेंड्स थे, चिल आउट कॉलेज सब पता है कि ये कैसा है वो कैसी है, सब दोनों को पता है, इन एंड आउट सब पता है। उन दोनों का भी फर्स्ट रिलेशनशिप में, वो दोनों नहीं सॉरी वो लड़की का सेकेंड था, सेकेंड था रिलेशन, बट पास्ट वाज समथिंग नथिंग, शी वाज इन्वॉल्वड इन intimacy something, both were virgin, both are virgin, और relationship around 6 to 12 like हुआ, and the हाँ so like the girl was surely said, उसने बोला था कि I don't want to get into that moment at least for a year, so it's crystal clear, वो बोला ठीक है okay it's fine, mutual consent से ही होता है ये सब ठीक है, और it's like बाद में when they had a moment, एक चांस था जहाँ पे she was, but वहाँ पे उसके जो लाइक वो झगड़े कुछ चल रहा था, टॉक्सिसिटी आ रही थी और रिलेशनशिप के बीच में कि समथिंग इन एंड आउट हो रहा था, तो उसके वजह से ये नहीं श्योर हो पा रहा था कि बाद में शायद ये निकल जाए, क्योंकि उसका ऐसा कहना था कि मुझे मल्टीपल पार्टनर्स नहीं चाहिए, सब मुझे नहीं करना, कि थोड़ा सा कि आई विल हैव इट व्हेन आई एम टोटली क्लियर ऑफ माई माइंड, कि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, कि हाँ अभी ये झगड़े होते तो ऐसे चलते कि ये छोड़ के चली जाएगी, तो मुझे वो क्लियर वो स्टेट माइंड चाहिए कि मैं हाँ नहीं है कुछ, मैं जिसके साथ वो मोमेंट शेयर कर रहा हूँ एटलीस्ट वो मोमेंट पे मुझे दिमाग में कुछ नहीं कि ये नहीं जा रही है, तो वो उसकी वजह से तो उसने अवॉइड किया। बाद में फॉर देन उस लड़की ने चीट किया, नहीं कन्फ्रंट तो नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, सीधा चीट किया, तो उसको वो भी चीट किया, वो पता वो बता वो एक्सेप्ट भी करना नहीं चाहती बाद में, जब लाइक उसका बंदे उसको पता चला मेरे फ्रेंड को कि शी इज चीटिंग विद समवन, उसने पूछा सीधा कि भाई पता चला है
तो विल गेट पार्टेड ऑफ, मेरे को नहीं रहना। शी इज लाइक नहीं तू टाइम नहीं देता, इट्स लाइक थोड़ा सा बोलते हैं ना प्रेशर गेम होता है, तो वैसा सीन था। लाइक वही कि अगर चीटिंग करना, अगर दूसरे के पास जाना है तो इट्स बेटर यहाँ पे एक First फर्स्ट communicate. हाँ इरेज दिस स्टोरी देन मूव फॉरवर्ड टू द न्यू स्टोरी। व्हाई टू राइट टू स्टोरीज एट अ टाइम? Yeah, fair enough. But that's what I'm saying, that people don't talk about it. People don't. It's not just us. It's not just our generation. But it came like बहुत पहले से. और एक होता है ना कि एक प्रथा टाइप सा बना दिया इसको. That it's a stereotype, but इसको एक ritual टाइप सा बना दिया है that you have to do this. These are the norms. You have to go by it. So it's not like that. You can change. आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन, किसी थर्ड पर्सन का ओपिनियन चेंज हो सकता है, एंड यू हैव दैट लिबर्टी. मैं जिसके साथ भी जाऊँ वो स्टेप लेने से पहले मुझे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट ये कुछ क्लियर ऑफ स्टेट ऑफ माइंड से मैं जा रहा हूँ, और वो भी उतने क्लियर एटलीस्ट वो मैच हो जो मेरा पास्ट में नहीं है. क्लैरिटी शुड बी कि हाँ ये हम दोनों का इतना एम है. वो स्मॉल एम लोग सोचते कि हम फ्यूचर एम रखेंगे. फ्यूचर एम मत रखो क्योंकि किसी को नहीं पता क्या होता है आगे. एक स्मॉल एम होता है कि फॉर नाउ आने एक रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले एक स्मॉल एम होना चाहिए. ये दिस इज द गोल. सो फॉर यू लाइक शुड बी द क्लैरिटी. द क्लैरिटी लाइक वो पूरा टाइम तक रहना चाहिए रिलेशनशिप को कंटिन्यू और बिल्ड होने में. हर चीज में क्लैरिटी रहनी चाहिए. Okay, that's great. I feel somewhere that if you would ask me that what exactly I would say about a relationship, like healthy going में जो relationship चले उसके लिए, I feel first of all there should be understanding at the max, and second thing there should be enough and massive respect between two people, because if the respect got hammered, then I feel disrespect वो चीज़ है जो just ego पे नहीं लगती, वो रह जाती है उनके अंदर. मतलब और वो तुमको it's not about कि तुम एक personality होता है that aggressiveness में निकाल देता है कोई ऐसा aggression में होता है that he or she might harm herself. तो I feel कि disrespect वो चीज़ है that you can't compare it with anything, and if does like कोई भी relationship में मतलब for example my relationship अगर disrespect होता है तो I'll walk off, because I'm a person who's gonna hold disrespect for life. मतलब वो मुझे पूरा ऐसे खा जाएगा अंदर. And just because I'll try to I'll try my best to मैं ये भूल जाऊँ, वो करूँ, मैं रिलेशनशिप भले ही भूल जाऊँगी, मैं छोड़ दूँगी सब कुछ पीछे, बट आई होल्ड दैट डिसरिस्पेक्ट. लोग वही है कि रिलेशनशिप में बात एक होती है, लोग उसको समझते कि करना, बात करना पड़ता है. ऐसा नहीं, बात रखना पड़ता है. ये समझो, करना और रखने में फर्क है. बात करना पड़ेगा तो इसलिए वो एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन रखते कि यार करना पड़ेगा मुझे, सोचना, रखो एटलीस्ट इट्स टाइम टू डू इट. हाँ रखो, वो क्लियर कर दो एटलीस्ट मेरे साइड से. हाँ मैंने ये बात रखी है, तुझे बात करना है, अभी करना है, ठीक है, नहीं बाद में करना है, पर मुझे अभी करना तो है. तो फिर वो कैसे ना एटलीस्ट एक कॉन्वर्जेशन क्लियर हो जाए. वो मेरा क्वेश्चन था, मेरा क्लियर हुआ, उसके वही क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा भी कुछ क्वेश्चन आएगा उस लाइक दौरान, वो तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा. तो इट्स बेटर वो हेल्दी रिलेशनशिप में वो बिल्ड करो. आई एक्चुअली फील दैट पीपल प्रिटेंड अ लॉट. मतलब डोंट प्रिटेंड, जस्ट से इट. एग्जैक्टली. तुम सोचोगे, मुझे ऐसे लगा था कि तुम ऐसा सोचोगी, आउट ऑफ दैट आई डिडंट, तो डोंट डू इट. हाँ तुम्हें लगा, क्यों लगा? मैंने जो सोचना है वो मैंने सोचना है, तुम क्यों सोच रहे हो? So that's the thing, and I feel that's actually really bad to this thing. If this thing happens in a relationship, this shouldn't be happening. And I feel we are talking too deep about a relationship, so we are too young for that. But exactly. Advice is too young for it. Yeah, so get back to our dating apps wala topic, and I feel that dating apps actually
somewhere, some or the other way, it actually affect the sex life Yeah. and your norms as well. एंड हो सकता है कि शायद डेटिंग एप्स आके अफेक्ट नहीं कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे हमको शायद रियलिटी चेक मिल गया है एग्जैक्टली कि दैट वी वर ब्रोकन पहले से, और अभी एक अच्छा पीओवी मिल गया है, एक मतलब रिलेशनशिप को नए तरीके से देखने का एक नजरिया, यू कैन से दैट वी हैव गॉट. एग्जैक्टली So I feel कि what do you think about it and what you want to say about the conclusion about the dating apps? डेटिंग एप्स एक्चुअली अफेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि आपको वही मैंने पहले भी बोला था कि मल्टीपल पार्टनर्स का ऑप्शन मिलता है आपको पहले से, तो आप एक ओपन अप हो जाते हो इस पे. एक आपका कहीं पे बैरियर्स होना एक अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ. मे बी मैं गलत हो सकता हूँ कुछ ऑडियंस के लिए, बट कई चीज़ों पे आपको बैरियर्स होना इट्स अ गुड थिंग. एटलीस्ट वो आपको बुरा लगे पर वो कहीं ना कहीं इन दी एंड वो आपको अच्छा ही बना रहा है एज ए इंसान. यू लाइक ग्रोइंग इनसाइड यू, द मैच्योरिटी, द सेंस ऑफ इट्स, वो सब आपको बढ़ाने के लिए वो कुछ बैरियर आपकी ज़रूरत है आपके लाइफ में. तो वो डेटिंग एप्स के वजह से बैरियर टूट रहे हैं बहुत. तो बहुत ज़्यादा ही कुछ बोलते हैं ना, सोचना ओके, बट कुछ हद से ज़्यादा अलग ही सोचना फिर वो गलत लेके जा रहा है हमें. दैट्स व्हाई इट्स लाइक ओके यू आर सर्फिंग द डेटिंग एप्स, बट इतना इंडल्ज मत हो जाओ कि उसमें कि उसके ऊपर तुम डिपेंड रहे कि हर टाइम बस Yeah. यू आर सर्चिंग फ्रॉम दैट ओनली कि वही पर्सपेक्टिव के थ्रू ही मैं जाऊंगा उधर. इट्स नॉट गुड. Yeah, it's like कि people also take it as a trend. It will start and it will end. Yeah. Oh my god, I make a rhyme. It will start and it will end. Trend. End. Okay. So, just thank you so much, Anirudh, Thank to you. have this like wholesome conversation, and it was so informative as well as interesting. And I didn't, felt कि हम लोग का कॉन्वर्सेशन ऐसे बहुत ही ज़्यादा हाँ. वो हो गया था, डिस्ट्रक्ट हो गया था ना. इट वॉज रियली हेल्दी कॉन्वर्सेशन विद यू. आई गॉट टू नो रियली न्यू थिंग्स. Even I got the breadcrumbing thing. Thank you. Yeah, so now you know. So basically, I would love if you say कैमरा की तरफ देख के कि break the stigma with Sigma, guys. Sure. Yeah. So guys, thank you so much. Thank you so much. And Keep breaking break the the stigma. stigma with